Good morning, students. In the previous class, we had studied about the scope of e-business. Let's now try to understand more about this topic e-business. Let's first see the benefits. Benefits are quite clear because we are making use of this e-business facility in our everyday life and we are quite familiar with all the benefits uh, that are available to us. The first one can be speed and convenience. It is of course convenient for everyone because in traditional form of business we physically have to visit the market, we have to visit several stores, then only we can make some purchase. But making use of e-business, what we can do, several types of products, they are very easily available to us. We can uh, very easily see their details online and we can go for purchasing those products matching our requirement, matching our needs, and the process is very speedy also. In real time we can have anything ordered. It doesn't depend on time also because physical market आपको time होता है कि market is open at this time, it is to be closed at this time, but online is available 24 hours round the clock. It is available as per your convenience. You can go for purchasing the items of your need any time. जो भी टाइम आपको सूट करेगा आप उस टाइम अपने मोबाइल पर, अपने डिजिटल डिवाइसेस पर, या कंप्यूटर या लैपटॉप्स, इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ करते हुए आप कभी भी वो परचेस कर सकते हैं. सो द प्रोसेस इज़ वेरी स्पीडी एंड कन्वीनियंट. Second is rapid response to needs. The process is very fast because physical में क्या होता है कि sometimes the thing which you require, that is not available, and for that you have to wait. You have to place the order, then you have to wait. But here what happens, whatever you need you can surf the net and वो आपको बहुत जल्दी available हो जाती है. Substantial savings. बिजनेसमैन के लिए क्या है कि फिजिकल आप जो कर रहे हैं तो यू रिक्वायर अ फुल फ्लेजेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट इन्वॉल्व्स क्वाइट आई मीन अ बिग डील ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज. बट इसमें क्या होता है कि आपका ई बिजनेस है, आपको सिर्फ अपना प्रोडक्शन, या अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हैं, तो आपको उस पर ध्यान, उस पर जो इन्वेस्ट होना है आपका वो होना है. एंड मेकिंग यूज़ ऑफ इंटरनेट, आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का प्रॉपर एडवर्टाइजिंग करके आप अच्छे से कम इन्वेस्टमेंट के साथ उसको, अपने बिजनेस को ऑनलाइन रन कर सकते हैं. फोर्थ इज़ ग्लोबल रीच. अगर आप फिजिकल कोई बिजनेस कर रहे हैं तो फॉर एक्सपेंशन इज़ नॉट एन ईजी गेम. एक्सपेंशन के लिए आपको अपने सेम, अगर सेम मिशन पर भी अगर आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप डिफरेंट लाइक उसके सब्सिडियरीज क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो एक बहुत टीडियस जॉब होती है, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है. एंड आप लाइक उसको दूसरी जगह पे एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसमें आई मीन एलेबोरेट आपको प्लानिंग एंड उसके एग्जीक्यूशन चाहिए होता है. बट ऑनलाइन जो है, यू कैन एक्सपेंड योर बिजनेस आई मीन to far off places very easily. So you can have global reach. Next is shorten or eradicate supply chain. What does that mean? When you do any kind of business, it involves number of intermediaries. The producer, from the producer it will go to the wholesalers, then to the retailers. There are number of other brokers, the agents in between, and then finally it reaches to the customers. And every agent, every intermediary adds on his or her own profit. So by the time it reaches in the hand of the customer, it has already added up a substantial amount of profit to that, and that enhances the cost of the product or the service. बट अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं, सो डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इट कैन रीच टू द कस्टमर, इरेडिकेटिंग ऑल द इंटरमीडियरीज. तो जो एडिशनल उसमें हमारे प्रोडक्ट में एड ऑन हो रहा है जिससे कॉस्ट उसकी बढ़ रही है, वो कम हो जाता है. And then next is paperless society. Making use of digital devices, we do not require having physical records. So that, what does that, how does that help? हमें एक paperless society create करने में मदद करती है.
कम पेपर का यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक डेटा हम क्रिएट करके वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी. लेट्स नाउ सी द लिमिटेशंस. लाइक हमने जो भी पढ़ा है, एवरीथिंग हैज़ टू फेसेस, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव. हर चीज़ के दो साइड होते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, नो डाउट इट हैज़ लाइक मेड आवर लाइफ वेरी मच कन्वीनियंट. बहुत एक बड़ा लाइक लीप है ये हमारे सोसाइटी के प्रोग्रेस में. But still it has some limitations, some demerits, some disadvantages which cannot be ignored. We need to know those disadvantages or limitations also so that we can try to minimize them. हमें उसका भी पता होना चाहिए कि इसकी हमारे क्या क्या limitations हैं. हमें इसमें हमें क्या क्या लाइक क्या गलत हो सकता है, उसकी भी हमें पूरी नॉलेज होना चाहिए ताकि हम ऑनलाइन बिजनेस करें, ई बिजनेस करें तो उसको बहुत हम इफ़ेक्टिवली कर पाएँ. The first limitation is limited personal touch. Like what happens in a traditional form of business, there is direct contact between the customer and the seller. So what happens that gives some kind of एक good faith create करने में help करता है. एक आपकी goodwill create होती है, उससे business चलने में बहुत मदद मिलती है. बट ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है. कस्टमर जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट डिटेल्स देता है. एक मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट उसका बहुत कम या ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं एक कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो पाता है. सो यहाँ पर पर्सनल टच मिसिंग रहता है. सेकेंड इज डिले इन डिलीवरी. All the manufacturers, all the suppliers, they have to depend on the third party, the courier service. एक थर्ड पार्टी पे डिपेंड करना होता है उनको अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचवाने के लिए. And there are a number of reasons which make create some delay in the delivery of the products. तो अब जैसे हम अगर ट्रेडिशनल वे में शॉपिंग करते हैं तो हम डायरेक्ट मार्केट जाते हैं, वी पे द प्राइस फॉर द थिंग एंड वी कैन ब्रिंग इट होम. बट फॉर दिस वी हैव टू वेट. जितना वो कोरियर में टाइम लगता है उतना टाइम हमें वेट करना पड़ता है और तब वो सामान हम तक पहुंच पाता है. नेक्स्ट लिमिटेशन इज अनफेमिलियरिटी विथ टेक्नोलॉजी. Still many people are there who are not very much familiar, especially the elderly people, because all this technology is quite new for them and they are still not very used to it. So what happens, they may face some kind of problem in using the technology to place the orders, and they may even get indulged into some kind of malpractices. Then is high risk. रिस्क इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व. हर बिजनेस में होता है रिस्क. हमने जो देखा था पीछे यूनिट्स में हमने देखा था कि बिजनेस रिस्क अभी तक जो हमने पढ़े थे वो रिस्क हम पढ़ रहे थे फिजिकल ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस के. बट ऑनलाइन बिजनेस, ई बिजनेस के भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं. देर आर रिस्क्स ऑफ लाइक हम जो प्लेस कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, वहाँ पर जिस वेबसाइट के थ्रू हम कर रहे हैं, कभी वेबसाइट फेक हो सकती है और भी बहुत सारे जब भी हम इसके थ्रेट्स हैं वो आगे देखेंगे. सो ई बिजनेस ऑल्सो इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द रिस्क. इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स हाई डिग्री ऑफ रिस्क. नेक्स्ट इज एथिकल इशूज़. एथिकल इशूज़ आर लाइक पीपल, सम पीपल उनका एक माइंड सेट होता है दैट दे प्रेफर the traditional way of business practices. They prefer purchasing things physically. उनको ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं समझ में आता है. They feel that their privacy is being hijacked. अगर वो कुछ ऑनलाइन अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं से शॉपिंग करने के लिए तो उनकी प्राइवेसी को ख़तरा हो सकता है. तो इन इश्यूज़ के वजह से कुछ लोग इस सिस्टम को, ई बिजनेस को नहीं प्रेफर करते. Next is resources required for successful implementation of e-business. अब हमें e-business establish करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या requirements हैं? We know that establishing a business in the cyberspace, there we should have provided proper details of all our products. जो हम सेल कर रहे हैं उसके सारे स्पेसिफिकेशन हमें क्लियरली वहाँ पर देने होते हैं. तो वो हम कैसे करेंगे? वी फर्स्ट हैव टू क्रिएट अ प्रॉपर वेबसाइट, एक अच्छी अट्रैक्टिव वेबसाइट जो लोग अट्रैक्ट हो, वहाँ हमारे प्रोडक्ट्स इस तरह डिस्प्ले हो, हमारे जो सर्विसेज जो जिस चीज़ का भी हम बिज़नेस कर रहे हैं
वो इतनी क्लैरिटी के साथ, इतने क्लियर स्पेसिफिकेशन के साथ वहाँ पर डिस्प्लेड हो, सो दैट पीपल कैन गेट अ वेरी क्लियर आइडिया. नेक्स्ट इज एडिक्वेट कंप्यूटर हार्डवेयर. हमारे पास एक हार्डवेयर सपोर्ट पूरा होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपना ई बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएँ. इफ़ेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम विद, आई मीन ऑनलाइन तो है ही, बट उसके साथ वी हैव टू कीप इन टच विद द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. हमें कस्टमर से भी एक कम्युनिकेशन करना होता है, हमें जो बाकी हमारे सप्लायर्स हैं उनसे भी करना होता है. तो उसके लिए वी शुड बी हैविंग अ वेरी इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ऑल्सो. देन टेक्निकली क्वालिफाइड एंड रिस्पॉन्सिव वर्कफोर्स. आपका जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस वक्त के साथ एक्सपेंड हो रहा है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन और फॉर वेरी फ्यू पीपल टू रन द बिजनेस, बी इट फिजिकल और बी इट ऑनलाइन. तो उसके लिए हमारा जो हम स्टाफ हायर करेंगे, दे शुड बी टेक्निकली क्वालिफाइड. इलेक्ट्रॉनिक्स, हम इस पे इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, हम बिज़नेस ई बिज़नेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमारा जो स्टाफ हम हायर करें, दे शुड बी वेरी मच टेक्निकली कॉम्पिटेंट, कि वो हमारे जो ऑर्डर्स आ रहे हैं ऑनलाइन उसको हैंडल कर पाएँ. एंड दे शुड हैव वेरी, आई मीन दे शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिव ऑल्सो. सो उनको बहुत क्विक रिस्पॉन्सेज देने होते हैं जो ऑनलाइन क्वेरीज आ रही हैं या ऑर्डर्स आ रहे हैं. So that too is a necessity for establishing an online business. And the important thing, that is system of receiving payments. अब हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं ऑनलाइन, वी हैव टू, हम उनको अब उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. रिस्पॉन्ड हम टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू करके और प्रोडक्ट्स हम सप्लाई कर देंगे, मेकिंग यूज़ ऑफ कोरियर एंड पोस्टल सर्विसेज. बट हाउ आर वी गोइंग टू रिसीव द पेमेंट. पेमेंट करने के लिए कोई वहाँ से आपको फिजिकली तो आएगा नहीं, वो भी हमें ऑनलाइन ही पेमेंट रिसीव करना है. तो उसका हमने जो प्रीवियस यूनिट्स में हमने बैंकिंग सर्विसेज में देखे थे कि ऑनलाइन पेमेंट्स के क्या क्या हमारे पास मोड्स हो सकते हैं. RTGS हो सकता है और बहुत सारे उसके तरीक़े हैं. मेकिंग यूज़ ऑफ प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स, इन सब कार्ड्स को के थ्रू भी हमें मनी ट्रांसफ़र हो सकता है. तो वो उसका भी हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज threats to e-business transactions. As I told you before that even e-business involves high degree of threats, high degree of risk. So what are the different threats जो हमें, जिसकी बहुत प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए, एंड वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू टैकल दोज काइंड ऑफ थ्रेट्स. फर्स्ट वन इज़ हैकिंग. हैकिंग इज़ व्हाट? हैकिंग वी नो दैट अनऑथराइज्ड एंट्री. कोई भी हमारी वेबसाइट में अगर अनऑथराइज्ड वे में एंटर होता है, एंड हैकर्स जो हैं दे हैव लाइक एक टेक्निकल साउंड पीपल होते हैं, and उनका क्या होता है, एविल इंटेंशंस रहते हैं हमेशा. दे मे हैक योर इंफॉर्मेशन एंड दे मे मिस यूज़ इट. आपकी कोई वेबसाइट आपने बनाई हुई है, सो दे कैन उसकी इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करके एंड दे कैन मिस यूज़ इट. आपके कौन कस्टमर हैं या आपको कहाँ से मनी आ रहा है ऑनलाइन, वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर उनको मिल जाती है तो ऑल दैट मनी विल बी मिसयूज्ड बाय देम. वो सारी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ हो सकता है. सो हैकिंग इज़ अ बिग थ्रेट टू ई बिजनेस. देन कम्स ब्रांड हाईजैकिंग. अब यू हैव, इट टेक्स आई मीन गुड डील ऑफ टाइम टू इस्टेब्लिश अ ब्रांड. एक ब्रांड बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत आपको अपनी फेयर प्रैक्टिसेस रख के और बहुत डिवोशन के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गेट टू इस्टेब्लिश योर ब्रांड. बट ई बिजनेस में क्या है कि ओवरनाइट योर ब्रांड कैन बी हाईजैक्ड. दूसरे नए जो प्लेयर्स होते हैं मार्केट में ई बिजनेस के फील्ड में, वो अगर ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से डिजिटल प्रैक्टिसेस को एम्प्लॉय करते हैं, तो योर ब्रांड कैन बी हाईजैक्ड ओवरनाइट. अनदर थ्रेट इज फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग. फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग क्या है कि उसमें फ्रॉड्स हो सकते हैं. द ऑनलाइन जो आपके जो बिजनेस, बहुत सारे लोग ऐसे कर सकते हैं कि फेक वेबसाइट्स बनाई हैं, उसमें कुछ उन्होंने ऐसे डिस्प्ले कर रखा है, एंड दे मे ल्योर द पीपल. आपको देखकर उनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन डिस्प्ले देकर लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं और आप पेमेंट भी कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का जो वहाँ डिस्प्ले है.
और अगर वो फेक है तो आपका जो पैसा है वहाँ पर वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह की फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस भी लोग कर लेते हैं। Another threat is viruses. We know that our digital devices, they are highly prone to the attack of viruses, trojans. तो एक हमारा अगर हमने ई बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है, वेबसाइट है हमारी, उसमें अगर वायरस अटैक हो जाता है तो हमारा सारा डेटा may get lost. नेक्स्ट इज़ इम्प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम्स। हम वेबसाइट क्रिएट करने के लिए वी शुड बी हैविंग अ डोमेन नेम, उसका हमें ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो वन ऑफ द थ्रेट मे बी कि कुछ लोग बिना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराए अपना एक वेबसाइट क्रिएट कर लें, एंड दैट इज़ ऑलवेज आई मीन अनसेफ टू डील विद। अदर साइबर क्राइम्स में भी कि आपका डेटा आप शेयर कर रहे हो, अपनी पर्सनल डिटेल्स अपना, लाइक व्हेन यू कम्युनिकेट विद दीज पीपल थ्रू ईमेल, सो योर ईमेल आईडी, समटाइम्स दे मे इवन you have to create your account in some of the websites. उनसे डीलिंग करने के लिए आपको वहाँ पर एक लॉगिन आईडी, एक अकाउंट अपना क्रिएट करना होता है, साइन अप करना होता है, विच में आस्क फॉर योर पर्सनल डिटेल्स लाइक योर कॉन्टैक्ट नंबर, योर मेल आईडीज़। अब आपका कॉन्टैक्ट, आपकी ये पर्सनल डिटेल्स, आपकी मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर किसी के पास जाता है तो वहाँ से आपको लाइक कुछ अगर कुछ एविल माइंड्स हैं तो दे में इवन सेंड यू थ्रेट्स, कुछ आपको वो गलत मैसेजेस भेज सकते हैं आपके इन पर्सनल डिटेल को यूज़ करके। सो दैट टू इज़ अ थ्रेट टू ई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। This ends your important topic e-business here. Now another topic, that is outsourcing, BPO and KPO, that is a part of this unit, but it has been omitted for this session. Board has omitted this part, but still I feel it is important for you to know the basic about this outsourcing term. Outsourcing क्या है? As the name suggests, outsource, एक कोई बाहर का source use करके some of the business practices if we perform by outside people, कोई expert है which are not our staff, which are not our employee, but we take services from them, we outsource their services to make our business practices more effective, so that is called outsourcing. So how do we define this term outsourcing? Outsourcing is the business practice of hiring a party outside a company to perform services and create goods that traditionally were performed in-house by the company's own employees and staff. Outsourcing is a practice usually undertaken by companies as a cost-cutting measure. Like for performing every function, if you hire the staff, they have to be paid on a basis. सर्विसेज ऐसी होती हैं जो ओकेजनल होती हैं, विच आर नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट इफ़ यू एम्प्लॉय स्टाफ फॉर सच सर्विसेज, तो आपको वो सर्विसेज किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर रिक्वायर्ड हैं, उसके बाद उनका कोई यूज़ नहीं है, बट यू हैव टू पे योर स्टाफ फॉर दैट वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो दैट मे एड वो एक एडिशनल कॉस्ट बिजनेस पर हो सकती है, बिजनेस फर्म पर। तो उसके लिए फर्म्स क्या करती हैं, वो आउटसोर्स करती हैं उन सर्विसेज को। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या वो सर्विसेज हो सकती हैं? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, अब बिजनेस की जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनको आउटसोर्स किया जा सकता है। कौन से हैं वो प्रोसेसेस? लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज, एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, which though is a regular one, but sometimes what happens to seek expert service, उसके लिए आप उसको भी outsource कर सकते हैं। तो that expert will be rendering his or her services to several companies. उनको क्या फ़ायदा होगा कि वो एक ही आदमी, एक ही expert डिफरेंट कंपनी से एसोसिएट हो जाते हैं और वो अपनी उन सर्विसेज के लिए दे मे गेट पेड मल्टीपल टाइम्स, अलग अलग जगह से उनका पेमेंट आ जाता है। और कंपनी को क्या फ़ायदा होता है कि उनको जब वो सर्विस रिक्वायर्ड है तब वो उस एक्सपर्ट को अप्रोच करेंगे, उनको पेमेंट करेंगे, उनकी वो सर्विस लेंगे। रेगुलर उनको उसका पेमेंट नहीं करना है। अदर वन मे बी एडवर्टाइजिंग, अगर हर कंपनी, हर बिजनेस फर्म अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी इस्टेब्लिश करे तो उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी कंपनी पर। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ या कंपनीज़ हैं जो हर बिजनेस फर्म के लिए काम कर सकती हैं। सो दैट टू इज़ एन आउटसोर्स्ड सर्विस।
Then is courier service. Courier service too, every business cannot have its own courier service company. एक उसका अपनी सब्सिडियरी क्रिएट करने में courier की बहुत उनको उस पर कॉस्ट लगेगी. वो स्टाफ जो है उनका रेगुलर स्टाफ अगर वो रखेंगे कोरियर सर्विस के लिए तो कॉस्ट बहुत आएगी कंपनी पर. तो ये भी आउटसोर्स करती हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ है, कोरियर कंपनीज़, उनकी सर्विसेज लेकर अपने प्रोडक्ट्स का ट्रांजैक्शन करवाते हैं. देन कम्स कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. अब जो हमारे ये BPOs, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेंटर्स, ये सब क्या होते हैं? दे मेनली हैंडल कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज ऑफ डिफरेंट कंपनीज. They receive complaints, feedbacks from the customers and they pass that on to the concerned company. So these are the different services, these different processes which can be outsourced, and we call it business process outsourcing or BPO. Then another term related to outsourcing is knowledge process outsourcing. Now, what is knowledge process outsourcing? In BPO, processes are outsourced. In KPO, knowledge is outsourced. अब कुछ फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, दे आर लाइक बहुत सीनियर लेवल के जो एक्सपर्ट होते हैं, दे आर हाईली कॉम्पिटेंट पीपल. अब हायरिंग सच पीपल मे हैव बहुत ज़्यादा कंपनी पर उसका फिनेंशियल एक प्रेशर आ जाएगा अगर उन लोग को हायर किया जाए ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो उनकी नॉलेज को हायर आउटसोर्स किया जा सकता है, उनकी नॉलेज को टेम्परली हायर किया जा सकता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. Outsourcing of core information related business activities which are competitively important or form an integral part of a company's value chain, such as research, analysis, consultancy, etc. तो कोई भी बिजनेस फर्म कंसल्टेंसी के लिए, एनालिसिस और रिसर्च वर्क के लिए एक्सपर्ट्स के सर्विसेज को आउटसोर्स कर सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग और KPO. So this is all. We finish this unit now, and on the next turn we'll be doing assignment, notes, and then an online test. So that's all from this unit, and that's all for today. Have a nice day, children.